T20 test on one day. India, England, Australia. What a player, what a player, what a player. Hello and welcome back to What a Player Concussion Sub series, where we've gathered to review the T20I series between India and Sri Lanka. It was a 3-0, no, it was 2-1, but no, it wasn't a 2-1 to India, it was 2-1 to Sri Lanka. What a big surprise that was. But you have to say that this was marred by the COVID issues we had in the team, and all kudos to Sri Lanka, who done exceptionally well to win the series, and kudos to the Indian team as well for sticking around and ensuring that we do play cricket come what may. 6 bowlers, 7 bowlers, whoever was available got a game. So I have Akash, Suman and Vishak with me. What are the first thoughts? Are we disappointed? Are we happy that at least we put up a fight in one of the games? The third game was a bit of a shocker, but what are your thoughts about the series overall? If given a chance, I'd like to get CCTV footage in Ranatunga's living room when he's watching Sri Lanka thrash India 2-1. That's my feeling right now, because I remember हम लोगों ने गेम प्रीव्यू किया था. मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट से 3-0 बताया. देन काफ़ी पब्लिक ने रणतुंगा जी का खिल्ली उड़ाया था. अभी पता नहीं रणतुंगा सर कितने खुश लग रहे होंगे और बाकी लोग किधर गए. हाँ, kudos to Sri Lanka. I mean, credit to them. They played well. Unexpected result for India. I had predicted 2-1 in favor of India, but it just turned out the other way. So can't help but after that COVID controversy, it was again credit to India that they at least stayed back. They did not give up. They did not go back. Whoever was there, they made sure that they at least put 11 on the park and at least fought. So credit to them. But I think if the result would have been otherwise 2-1, would have been much more happy. I'm just disappointed that Dravid's first Indian coaching assignment went in T20 loss. But apart from that, I think kudos to both the teams. India for looking at their whatever the remaining bench strength was, and Sri Lanka for actually playing well, and not only playing well, taking notes from Rahul Dravid and Shikhar Dhawan post the match, during the match. All these are things which can augur well for them. No ego, keep the ego aside about playing in opposition. Take notes from seniors from that side. It's a good thing which they're coming up with, especially with news coming in that 3 of the seniors might be banned for a year. This is the team which they're looking forward to for all the series coming up. So it's good for Sri Lanka's perspective. Yeah, and Sri Lanka, obviously, I think potentially they may have another series against South Africa before the World T20. But for India, this was the last T20I. So we're going to quickly touch upon, from an Indian perspective, क्या positives निकल के आई हैं इस series से और क्या disappointments. I won't say negatives because let's put it as an opportunity कि क्या हम लोग और बेहतर कर सकते थे. तो सबसे पहले हम positives को देख लेते हैं, थोड़ा cheer up कर लेते हैं. विशाख, क्या positives इसमें से निकल के आया है? बहुत बड़ा पॉजिटिव था सूर्य कुमार यादव. जैसे पूरा सीरीज में खेले हैं वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है. It looks like he cannot do anything wrong. He cannot put a foot wrong. Only thing which I would be critical of him is after getting a 50, he is throwing away his wicket. So maybe he has to play a longer innings. But the way he is playing, I think he is the only one in the Indian camp who played Hasaranga pretty well. He went whenever he had to go on the front foot or on the back foot. He played him pretty well. So he looked pretty confident. So that is one of the biggest positives. And again the Chahar brothers. Rahul Chahar, the way he bowled in the last 2 matches, it was pretty impressive. And even the last game, if you see, India just picked 3 wickets and all the 3 wickets went to Rahul Chahar. And I think he should be in the T20 lineup ahead of Kuldeep Yadav. Chahar, I think, will be selected automatically. But I think Rahul Chahar should be the second spinner. And Deepak Chahar, the way he batted, and he's kind of turning into an all-rounder. If he is groomed properly, I think he can become a good all-rounder. And I think Bhuvi's form is also a good thing. I think he is back among the wickets. So that is also a good sign. काफी सारे पॉजिटिव्स मुझे भी लगे. नेगेटिव्स अभी हम लोग खोदेंगे, पहले पॉजिटिव्स निकाल लेते हैं साइड में. सुमन, आपको क्या लगता है, क्या क्या पॉजिटिव्स थे इस सीरीज से? सूर्य कुमार, चहर, कजिन ब्रदर्स, भुवी का फॉर्म तो ठीक ठाक था.
बट और कुछ खास पॉजिटिव्स बैट्समैन की तरफ से धवन ने भी ठीक ठाक किया, और कुछ आपको लगता है जो पॉजिटिव्स थी? चांसेस सबको मिले हैं, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से मिले हैं, बट ह्यूज पॉजिटिव इज जिनको भी लेके गया था टूर पे, सब लोगों को चांस मिला है. And it is a big deal representing India, even if it is one match due to whatever may be the reason. I mean, likes of Sandeep Warrior, likes of Devdutt Padikkal, जो bench पे बैठे हुए थे, उनको एक गेम मिला है. So it must have been pretty emotional moment for all of them. And it is unfortunate that some of them probably won't be appearing in the full-time squad. I think that's my positive, that सबको chance मिला है, सबको feel मिला है कि what does it mean to play for India. From childhood they probably were dreaming of that moment, so that's a huge step up. And from Sri Lanka point of view, support structure which Sri Lanka got from Dhawan and all the advisors which Rahul Dravid gave, their board and team will be pretty thankful for the support India provided, because if India wouldn't have toured, look at these players who were so talented. I don't think anybody would have got an opportunity to see. And this morning I saw a lot of forwards in our WhatsApp group of What a Player that Hasaranga has been approached by RCB, which RCB do to every performer whenever they see in T20. But I mean, who would have thought Hasaranga will get that chance from RCB to approach for IPL? We were also looking at some of the Facebook reactions from yesterday. Looking at scoreboard, yes, it looks ugly. 80 odd all out, and then losing the series definitely sucks. But have a look at it this way: we all work, and if there are 3 or 4 people who call in sick in our team, we have to pick up the slack and we have to do the work for the team and deliver for the team. That's what Indians did. Now, whether we did a good job or no, in our capacity we did it. If you're covering 4 people worth of work in one day, we are bound to make mistakes. We are bound to be worried about. So that's how I'd see. I think moral of the story, I think all in all, a positive result. And like Dravid said, huge learnings for the players. And hopefully some of the youngsters continue to push their attitudes to be persistent in making it big. And Samson is Samson. I mean, nobody can help. All of us are concerned about his batting. He didn't make use of his chances. But look, he himself knows. Stats are there to see. So there's nothing much to talk about Sanju Samson. पॉजिटिव्स तो काफी कवर हो चुके हैं. एक पॉजिटिव मुझे ये भी लगता है कि प्लेयर्स की तरफ से नहीं, कि ये पिच ऐसी पिच तो आई बी वेरी सरप्राइज अगर ऐसी पिच हम लोग को यूएई में मिलती है वर्ल्ड कप के लिए. ये श्रीलंका होम साइड थी, उन्होंने देखा बहुत अच्छा चांस था इंडिया को हराने का, एकदम टर्निंग ट्रैक प्रेजेंट किया, और मे बी इंडिया को शायद बॉलिंग करना था, बट बहुत ही टर्निंग ट्रैक था. हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं सब स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो उस वजह से ठीक है हार गए, कम से कम क्रिकेट तो हुई, जज्बा थोड़ा दिखाया सेकंड में, थर्ड वाले में थोड़े हम फीके पड़ गए. बट आकाश, अपॉर्चुनिटीज जैसे संजू सैमसन की बात करें, और कौन से प्लेयर्स आपको लगता है जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज गंवाई हैं, और कहाँ ये लोग शायद अपना एक मार्क छोड़ सकते थे इस सीरीज में? देखिए, अगर T20 सीरीज की पर्टिकुलरली बात करें तो दूसरे और तीसरे मैच में आप देखेंगे तो ज़्यादातर डेब्यूज हुए थे, और पहला मैच भी कंसिडर करेंगे तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो सिर्फ 1 या 2 मैच ही खेले अपने करियर में. सो इट्स वेरी अर्ली टू राइट देम ऑफ. इट्स टू अर्ली टू जस्ट राइट देम ऑफ. अब चाहे देवदत्त पडिक्कल की बात करें या राणा की बात करें या फिर गायकवाड़ की बात करें, गायकवाड़ ने अच्छी शुरुआत की लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए. लेकिन ये लोग अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको टाइम मिलेगा तो शायद अच्छा परफॉर्मेंसेस और आएंगे. ये सिर्फ उनका पहला सीरीज़ है, तो ऐसा नहीं कि एक सीरीज़ में हम हार गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे प्लेयर्स हैं. IPL में आपने देखा है कि कितने शानदार परफॉर्मेंसेस आते हैं इनके, उसी बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था. तो आगे भी शायद इस वर्ल्ड कप के बाद जब ओल्डर प्लेयर्स रिटायर हो जाए या फिर मूव ऑन हो जाए तो ऐसे प्लेयर्स को हमको चांसेस देना चाहिए. फॉर एग्जांपल शिखर धवन, शायद ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है अगर सेलेक्ट हुए तो उनके बाद क्या, रोहित शर्मा के साथ, राहुल के साथ और कौन हो सकता है बैकअप ओपनर? आपके पास पडिक्कल है, आपके पास गायकवाड़ है, आपके पास शॉ है. तो ऐसे प्लेयर्स को प्रमोट करते रहना चाहिए. सिर्फ नेगेटिव की एक बात करें तो सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ संजू सैमसन ही था जो एक नेगेटिव था. 10 मैच में 11 का एवरेज है उनका अभी T20 एज में, जहाँ की अगर आप IPL की बात करें तो उनका एवरेज कम से कम 25 के आसपास है. तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बावजूद जब सीनियर प्लेयर का रोल प्ले करना होता है आपको, यू हैव टू स्टैंड अप बेसिकली. धवन,
संजू सैमसन, यही 2 सीनियर प्लेयर्स थे लास्ट टू T20s में। तो अगर रन्स बन पाते उनके बल्ले से तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट उनको भी होगा कि उन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया लास्ट 2 मैचेस में। संजय, आपको क्या लगता है ये इंडिया का T20I परफॉर्मेंस देख के, स्क्वाड देख के, IPL क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का डिस्पैरिटी, और आर वी रीडिंग टू मच इनटू इट, और आर वी सेइंग द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग IPL नीड मोर टाइम बिफोर गोइंग इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट? क्या लगता है वो डिबेट पे आपको? नहीं, इसमें 2-3 चीजें। एक तो पहले तो मेरे हिसाब से दोनों जो लास्ट 2 गेम्स में जो पिचेस थी वो एकदम बेकार थी मेरे हिसाब से। सेकंड गेम जो था वो हम थोड़ा यहाँ वहाँ अगर मार्जिन एक विकेट हम ले लेते, DRS सही ले लेते, या कोई 1-2 छक्का नहीं जाता एंड में भुवी का, तो उसमें मेरे ख्याल से वो मैच हो जाता, और फिर हम ये डिस्कस भी नहीं करते होते कि 2-1 से जीत गए सीरीज, यू नो। तो बहुत ही फाइन मार्जिन था। ये लगता है 2-1 लॉस हुआ है। T20I सीरीज हम सालों से हारे नहीं है श्रीलंका के साथ। 2009 के बाद पहली बार हम शायद हारते हैं। तो ये सब बातें हैं। प्लेयर्स IPL में जो खेलते हैं डेफिनेटली दे आर गुड इनफ। ऐसा पिच मिला है और कॉम्बिनेशन भी हमने जबरदस्ती फिट किया उसमें। और जब प्लेयर्स देखते हैं कि आगे 6 बॉलर हमने मजबूरी में ली है, तो वो उस हिसाब से कंजर्वेटिव खेलते भी, ऊपर से पिच ऐसी है, तो ये सब कॉम्बिनेशन मिला है। तो मुझे लगता है इसी वजह से इसमें ज़्यादा कोई रीड करने वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ये आखिरी T20I था वर्ल्ड कप के पहले, हम चाहते थे कि थोड़ा कोई एक मौका अपना ले और अपना एक दावा करे एक पोजीशन का वर्ल्ड T20 के लिए, बिकॉज स्क्वाड तो बड़ा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई डोंट थिंक 15 का स्क्वाड होगा, 20-25 लोग शायद अलाउ करेंगे, और शायद टीम्स एक्स्ट्रा भी आउटसाइड ऑफ द टीम दे माइट वांट टू हैव नेट प्लेयर्स की जस्ट इन केस कोई इंजर हो गया या कोविड का सिचुएशन आ गया तो तुरंत उनको ड्राफ्ट इन किया जाए। श्रीलंका की तरफ से विशाख, बिकॉज आप और आकाश एकदम एक्सपर्ट है, श्रीलंका की तरफ से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव्स हैं आप 2-4 वो बता दीजिए प्लीज। श्रीलंका की तरफ से बहुत बड़ा पॉजिटिव है हसरंगा। सबको पता है और नंबर 2 T20 बॉलर है, मगर जैसे इंडियन बॉलर्स को बीट किए, जैसे उन्होंने विकेट्स लिए, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लाइक होप करेंगे कि साउथ अफ्रीका के साथ भी वो ऐसे परफॉर्मेंस देंगे और वेस्ट इंडीज में वो ट्रम्प कार्ड रहेंगे। और उनका बैटर्स अविष्का फर्नांडो या विनोद बानुका, उन दोनों ने अच्छी शुरुआत दी है उन लोगों को, वो दोनों आज, और चामिका करुणारत्ने जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो लाइक बहुत अच्छा बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी थोड़ा आके एंड में फिनिशिंग रोल प्ले कर लेते हैं, वो भी एक। और चरित असलंका लास्ट 2 T20s वो खेल नहीं पाए इंजरी के दौरान, मगर जो भी ODIs और पहला T20 में उसका उनका प्रदर्शन था बहुत ही अच्छा रहा। तो वही एक वो सब पॉजिटिव्स है। और दुश्मन चमीरा, जैसे उन्होंने न्यू बॉल से बॉलिंग किया था, वो भी बहुत इम्प्रेसिव। चमीरा को ओवरसीज कंडीशंस में देखने का बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में अगर वो बॉलिंग करेंगे, उनके पेस और उनको स्विंग भी मिल रहा है। जैसा धवन का विकेट गया था, ब्यूटीफुल लाइन एंड लेंथ एंड पेस। सो ओवरसीज कंडीशंस में चमीरा विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। Actually, Sanjay Manjrekar had mentioned one point which I don't agree with, which is he said he can be Jofra Archer for Sri Lanka, but he is a good bowler, but he is not someone like a Jofra Archer for sure. बिल्कुल, संजय मांजरेकर जो भी कहते हैं उनको ध्यान से सुने और आगे बढ़े उसके बाद। और सबका अपना अपना ओपिनियन है, ऑब्वियसली जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला सबका ओपिनियन काफी रिस्पेक्टफुल है। सो इफ ही थिंक्स दैट वे मे बी ही वुड बिकम बेटर देन जोफ्रा आर्चर। तो आधे टाइम इंजर्ड रहते हैं, एशेस खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, बस बाकी टाइम वो इंजरी में फंसे रहते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका तो वर्ल्ड T20 में ग्रुप स्टेजेस में खेलेगा ताकि वो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई हो। इंडिया को ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन है। इंडिया इसके बाद कोई इंटरनेशनल गेम खेलने नहीं वाला है, सिर्फ IPL ही है जो आधा हाफ बचा हुआ है। कंसिडरिंग व्हाट वी नो एज ऑफ नाउ, आप मुझे एक 11 बना के दीजिए। सुमन, स्टार्टिंग विद यू। रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट Kohli number 4, not opening, bear in mind. Then comes between Ishan Kishan and Hardik Pandya, big call, right? That is what, number 5.
कृणाल पांड्या, और अगर श्रेयस अय्यर फिट हो तो सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर के बीच में होगा फिफ्थ. Krunal Pandya, I can't believe I'm saying that he'll be in 11, but he will be. Ravindra Jadeja, that will be 7, right? Then Bhuvi, Yuzi Chahal, due to his RCB association, he will be part of 11. Mohammad Shami, and then Bumrah. I'll go with the same openers, Rohit Sharma and KL Rahul, followed by Virat at 3, Sky at 4, Pant will be at 5, and then Hardik Pandya at 6, followed by Jadeja at 7. And then you'll have the bowlers with basically Bhuvi, Bumrah. I will play Siraj, and then one out of Chahar or Chahal, depending on the pitch. If it has got more spin out there, probably I'll play both Chahar and Chachas basically. Otherwise, I'll play 3 seamers and 2 spinners in Jadeja and Chahal. मैंने पंत के बारे में भूल ही गया क्योंकि उन्होंने इतने दिन से क्रिकेट खेला नहीं, हमको ध्यान में नहीं है, और इतने प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं इंडिया में, भूल ही गया पंत के बारे में. But Ishan Kishan definitely should be part of the 11, even if it is Pant is there. That's my opinion. I agree with the top 7 which Akash mentioned. Like Pant at 5, Hardik Pandya and Jadeja at 7. I would play Bhuvneshwar Kumar at 8. Then Deepak Chahar and Chahal and Rahul Chahar. This will be my 11. So in that way, we'll get 3 spinners, and if Hardik Pandya can bowl, we'll have 3 seamers as well. So मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ. मैं क्योंकि अगर कोहली ने कमिट किया है वो ओपन करेंगे, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो ओपन करेंगे, आईपीएल में भी बहुत रन करेंगे और वो शायद ओपन ही करेंगे. तो लेट्स एज्यूम दैट कोहली और रोहित ओपन, ईशान किशन नंबर 3, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, चहर, भुवी, बुमराह और एक कोई फास्ट बॉलर चाहिए, शमी या सिराज. ये दोनों में से how did I miss Bumrah? हाँ नहीं, बुमराह को तो मतलब मैं I missed Bumrah, so I would drop Bhuvneshwar Kumar and get Bumrah in 11 पे. लेकिन हाँ, एक सीमर की जगह, और चहर बिकॉज मुझे तो उनमें बहुत पोटेंशियल दिखता है. मुझे लगता है अब ये हार्दिक पांड्या से आगे निकल के, even looking at to the next year's World T20 which will be in Australia, वहाँ सीमर ऑलराउंडर होना ज़रूरी होगा. बिकॉज हमारा पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसी वजह से ख़राब हो रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो बैटिंग की बदौलत वो टीम में आ सकते हैं. इतने अच्छे वो उन्होंने फॉर्म दिखाया है बैटिंग के साथ, और उसी वजह से यू हैव टू सॉर्ट ऑफ प्ले, यू कैन नॉट प्ले कुलचा टुगेदर, या फिर 2 स्पिनर्स एक साथ एकदम जो स्पिन करने वाले हों बैटिंग न करें, उनको मुश्किल है. तो एक बैट्समैन की जो कमी है, एक्स्ट्रा बॉलर, वो सब मिला के करना पड़ता है. बट आपको क्या लगता है इस टीम compared to all the rest of the teams in the world, how strong they are? Easy semi-final spot you think, or we'll struggle? Semi-final should be a walk-in. I mean semi-finals के तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता. उसके बाद जो 2 नॉकआउट मैचेस में परफॉर्मेंस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. I think this 11 should hold good. We'll have tough competition definitely from West Indies and even Pakistan for that matter, and England. We can come through depending on the conditions. If you have good spinning conditions, we've got the spin out there, quartet out there. You have Kulcha, you have Chahar now, you have Jadeja. You've got the right kind of spinners required with variety as well. Let's hope that we can get through. This challenge will be the game against Pakistan, because they have got very good spinners and they have the experience of playing in UAE as well. And again, they would be eager. They have not, as we all know, that they have not won a World Cup game against India. So they would want to change that history as well. So that would be one crucial game. I think even West Indies would be pretty hard, but I think we can still get through. But the game against Pakistan would be the most crucial one. एक ही उम्मीद है कि बैक टू बैक कहीं संजय का दिल ना टूट जाए, क्योंकि आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप. विराट कोहली का प्रेडिक्शन आपने किया था कि 3 कप जीतेंगे, 1 कप तो गया हाथ से, अभी 2 कप बाकी है, बैक टू बैक होने वाले हैं. आईपीएल जीते ना जीते, वर्ल्ड T20 जीत जाए, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आईपीएल हर साल आते रहेगा, वर्ल्ड T20 5.5 साल बाद हो रहा है, अगला नेक्स्ट ईयर होने की उम्मीद है. उस बीच पता नहीं है, पैंडेमिक वगैरह का चक्कर चलते रहता है, तो कैसी टीम कॉम्बिनेशन होगी, कौन प्लेयर्स होंगे, क्या होगा, किसे पता है. तो और ऑन ए सीरियस नोट दो, इंडिया का
इंडिया को काफी प्रेशर फील होगा इस टूर्नामेंट में ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस। एक तो काफी रेप्यूटेशन से आने वाले हैं क्योंकि आईपीएल खेले हैं, काफी प्रैक्टिस है एक्सेट्रा। सेकेंड, हमारा आईसीसी टूर्नामेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी उतना खास नहीं है, स्पेशली नॉकआउट्स में। सो pressure is going to be there. Now, how do they handle the pressure and what do they do when the team really needs is what will define India's future. हम लोगों ने मजाक में ऐसे हिमाचल के साथ जब बात किया था, इंडिया वेस्ट इंडीज का फाइनल बात हुआ था, पर अनलाइकली है कि इंडिया वेस्ट इंडीज फाइनल होगा। But personally speaking, it will be tremendous amount of pressure for India on the tournament. एकदम आपने सही कही, बिकॉज जो आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एकदम फ्रीली खेलें, बिकॉज 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक है। फ्रीली खेलेंगे तभी आगे प्रोग्रेस करेंगे। ज़्यादा हम रुक के, जैसे इंग्लैंड जिस हिसाब से खेलती है, दिस इज अज्यूमिंग पिचेस आर गुड, 1 विकेट गिरे, 2 विकेट गिरे, 3 विकेट गिरे, वो चला के ही खेलते हैं, भले 19 ओवर में ऑल आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि हम, जो इंडिया का स्कोर था फॉर एग्जाम्पल 3rd T20, 81 पर इट इज द लोएस्ट स्कोर फॉर अ टीम हु हैजंट बीन बोल्ड आउट। मार के खेले, बनेगा तो 120 बनेगा, वरना 60 भी बने तो हारना है, 80 भी बने तो हारना है। तो वो इंटेंशन से आप खेलेंगे तो मुझे लगता है आगे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी कसरत चल गई हमारी। वर्ल्ड T20 ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पहले टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद आईपीएल है, तो बहुत सारे इस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाले हैं। ये तो घंटों टॉपिक चल सकता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए। काफ़ी सारे क्रिकेटिंग कंटेंट्स है, कुछ पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम फैंटेसी वीडियोस करते हैं, मैच प्रीव्यूज़, रिव्यूज़, लाइव सेशंस भी हम करते हैं मैच डेज में इंडिया के। हमारा एक ट्रिविया सेक्शन है जो काफ़ी मज़ेदार है, हमको बहुत मज़ा आता है वो करने में, होपफुली आपको वो पसंद आएगा। और अगर आप रिटर्न आ रहे हैं हमारे चैनल पे तो शुक्रिया, इसी तरह हमारा सपोर्ट बनाए रखें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आकाश, सुमन और विशाख, आप सबका धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ। शब्बक है। Stay safe everyone.